السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی مسلم رہنماؤں کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس نے آج منگل کی رات افطار ڈنر منسوخ کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائٹ ہاؤس ذرائع نے بتایا کہ مسلم رہنماؤں کی جانب سے افطار ڈنر کے بائیکاٹ کے بعد وائٹ ہاؤس نے تقریب منسوخ کر دی۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورڈ احمد میچل نے بتایا کہ تقریب اس لیے منسوخ کی گئی کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بائیکاٹ کی فہرست میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ امریکی مسلم کمیونٹی نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے لیے وائٹ ہاؤس کے ساتھ افطار کرنا ناقابل قبول ہوگا، جو غزہ میں فلسطینی عوام کو قتل کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور غزہ میں مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ ناقدین نے خبردار کیا ہے کہ مسلم رہنماؤں میں غم و غصہ نومبر میں ہوئے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کے انتخابی امکانات کے لیے ممکنہ طور پر خطرہ بن سکتا ہے۔ واضح ہے کہ 1 اپریل کو شائع امریکی نشریاتی ادارہ CNN کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے مسلم کمیونٹی کے لیے افطار ڈنر کے لیے امریکی مسلم رہنماؤں کو دعوت نامے جاری کیے تھے۔ فلوریڈا میں مقیم ایک مسلم گروپ نے کہا کہ انہیں اور دیگر مسلم امریکی نمائندوں کو صدر، نائب صدر اور ٹیم کے سینئر ارکان کے ساتھ ملاقات کی دعوت موصول ہوئی تھی، لیکن ہم نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز میں گورنمنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر رابرٹ میکاؤ نے میڈیا کو بتایا کہ کئی امریکی مسلم تنظیمیں اپنی طرف سے جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے وائٹ ہاؤس کے ارد گرد افطار ڈنر کا اہتمام کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مسلم رہنماؤں کی جانب سے افطار ڈنر کے بائیکاٹ کے بعد اب صرف کچھ مسلم رہنما جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے گزشتہ روز مختلف ملکوں سے آئے ہوئے امدادی کارکنوں کی اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں ہوئی ہلاکتوں پر معافی مانگی ہے۔ اسرائیلی فوج نے امدادی کارکنوں کی گاڑی کو قصداً بمباری کا نشانہ بنایا تھا۔ باوجود اس کے کہ امدادی کارکنوں نے غزہ کے بھوکے اور قحط زدہ فلسطینیوں میں خوراک تقسیم کرنے سے پہلے اسرائیلی فوج کو اپنی موجودگی اور سرگرمی سے آگاہ کر رکھا تھا۔ اس بمباری کے نتیجے میں 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت ہو گئی، جن میں آسٹریلیا کی خاتون بھی شامل تھی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اسرائیل سے اس بارے میں وضاحت طلب کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ لندن میں اسرائیلی سفیر کو برطانوی وزارت خارجہ میں طلبی بھی بھگتنا پڑا ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق نے امریکی ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کے سربراہ اور اس امدادی مشن کی نگرانی کرنے والے ہوزے اینڈرز سے بات کرتے ہوئے گہرے غم کا اظہار کیا اور ان سے 7 قیمتی جانوں کی بمباری سے ہلاکت پر معافی مانگی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج اب تک کئی بار بھوکے اور قحط زدہ فلسطینی عوام کو خوراک کے حصول کے دوران بمباری اور فائرنگ کا نشانہ بنا کر درجنوں کو ہلاک کر چکی ہے، جبکہ مجموعی طور پر غزہ میں 32,916 سے زائد فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں صدور کے درمیان معاشی روابط، یوکرین اور سائبر سیکورٹی خدشات سمیت مختلف معاملات پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر چینی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا احترام اور مساوی تعاون قائم رکھنا چاہیے۔ تاہم امریکہ نے ہماری ٹیکنالوجی کی ترقی روکی تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ تائیوان کا معاملہ ریڈ لائن ہے جو امریکہ چین تعلقات میں عبور نہیں ہونی چاہیے۔ چینی میڈیا نے بتایا کہ صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا احترام اور مساوی تعاون جاری رکھنا چاہیے۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے چینی ٹیکنالوجی کی ترقی روکی تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دونوں صدور نے انسداد منشیات، مصنوعی ذہانت، موسمیاتی تبدیلیوں اور جزیرہ نما کوریا کی صورتحال پر تعاون کے لیے بھی اتفاق کیا۔ علاوہ ازیں چینی صدر نے امریکی ہم منصب پر واضح کر دیا کہ چینی کمپنیوں پر ہر گزرتے وقت پابندیوں کا سلسلہ کشیدگی کو کم کرنے کے بجائے اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ چین کے صوبے شنگھائی میں شدید طوفان کے باعث ہو رہے حادثات میں 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ 31 مارچ سے جاری شدید بارش، موسلا دھار بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے 9 شہروں میں 93,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے صوبے کے دارالحکومت نانچنگ میں ایک عمارت کی چھت اڑ گئی اور شہر کی ایک اور کثیر المنزلہ عمارت سے گر کر 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے طوفان کی وجہ سے لیکن تاحال اسباب کے باعث مزید 4 افراد کی اموات کی اور 11 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ طوفان کے باعث 5,700 ہیکٹر زرعی اراضی اور 2,751 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ 800 سے زیادہ افراد محفوظ مقامات پر منتقل کرائے گئے ہیں۔ تائیوان کے مشرقی حصے میں 7.5 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز تائیوان کے ہولیان شہر سے 18 کلومیٹر جنوب میں
34 किलोमीटर की गहराई में था, जबकि जापान की मौसमियाती एजेंसी ने ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 बताई है। ताइवान में आए ज़लज़ला इतना शदीद था कि इसने जापान के जनूबी जजीरों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम हो गई। हुक्काम ने शहरियों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत जारी कर दी है। ताइवान में ज़लज़ले से अब तक 7 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ख्याल रहे कि ताइवान में सितंबर 1999 में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था और जजीरे की तारीख की सबसे मौलिक कुदरती आफत में तकरीबन 2400 अफराद हलाक हो गए थे। जापान में हर साल तकरीबन 1500 ज़लज़ले महसूस किए जाते हैं। जापान और ताइवान आम तौर पर ख़ास तामीराती टेक्निकों और सख्त इमारती ज़वाबित की वजह से बड़े ज़लज़लों से कम नुकसान उठाते हैं। जापान का अब तक का सबसे बड़ा ज़लज़ला मार्च 2011 में मुल्क के शुमाल मशरक़ी साहिल पर आया था, जिससे सुनामी आई थी और तकरीबन 18,500 अफराद हलाक या लापता हो गए थे। इजरायली फौज ने लेबनान के जनूबी सरहदी इलाकों पर बैक वक्त भारी तोप हमले किए। लेबनान की सरकारी खबरसां NNA के मुताबिक इजरायली फौज ने तोप फायरिंग और मीरकावा टैंकों से सरहदी इलाकों की आबादियों को हदफ बनाया। इजरायली फोर्सेस तोप और टैंक बमबारी जारी रखे हुए हैं और शोएब, रामीम, अल सकीरा, अल नाकुरा और लेसिनिया को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में इस साल अरबपतियों की तादाद और इनकी दौलत में इजाफा हुआ है। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की जानिब से 38वें मरतबा शाया हुई अरबपतियों की फहरिस्त में बताया गया है कि दुनिया भर में अरबपतियों की तादाद और इनकी दौलत में इजाफा हुआ है। इसके मुताबिक अरबपति अफराद की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 141 अफराद के इजाफे से 2781 तक पहुँच गई है। अरबपतियों की कुल दौलत $2 ट्रिलियन से बढ़कर $14 ट्रिलियन हो गई है। पुरतईश सामान की बड़ी कंपनियां LVMH के CEO बर्नार्ड आर्नोल्ड ने $233 बिलियन के असासों के साथ दूसरी बार दुनिया के अमीर तरीन शख्स का दर्जा हासिल किया है। लुइस वुइटन, टिफनी एंड कंपनी, क्रिश्चियन डियोर और सेफरो जैसे ब्रांड्स के मालिक आर्नोल्ड की दौलत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में $22 बिलियन का इजाफा हुआ है। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क $195 बिलियन के असासों के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस $194 बिलियन की दौलत के साथ तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा अरबपति होने वाले ममालिक में 813 अफराद के साथ अमेरिका है। इसके बाद चीन में 473 अरबपति मौजूद है और हिंदुस्तान में 200 अरबपति मौजूद हैं। सूडान की हुकूमत ने मुल्क में मुत्तहिदा अरब इमारत यानी UAE के 3 चैनल्स अरबिया, स्काई न्यूज़, अरबिया कॉर्पोरेशन को रोक दिया गया है। मुकामी खबरसां ANC सोना ने यह इत्तला दी। एजेंसी ने बताया कि सूडान के वज़ीर सकाफ़त और इत्तलात अब्दुल कादर ने 3 चैनल्स को बंद करने का हुक्म जारी किया। वज़ीर ने कहा कि तीनों चैनल मतलूबा पेशेवाराना महारत और शफाफियत का मुजाहरा करने और लाइसेंसों की तजदीद में नाकाम रहे हैं। स्काई न्यूज़ अरबिया अबू धाबी और अल अरबिया और अल हाविज़ दुबई में कायम है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने युगांडा के हुक्काम के हवाले से गुज़िश्ता अगस्त में इत्तला दी थी कि मुत्तहिदा अरब इमारत ने सूडान के तनाज़े के फ़रीक़ीन में से एक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को युगांडा के ज़रिए हथियार फराहम किए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारत की वज़ारत ख़ारजा ने ताहम इस रिपोर्ट की तरदीद की है। अप्रैल 2023 में सूडानी फ़ौज और RSF के दरमियान झड़पें हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुल्क में कई आर्जी जंगबंदी नाफिज की है, लेकिन किसी ने भी तनाज़े को हल नहीं करने में मदद की। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ में मौसम और मौसमियाती पेशगोई के डायरेक्टर जनरल हमजा का कहना है कि मुमलिकत के जुनूब से शुमाल तक बारिशें हो सकती है। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश के इस सिलसिले में जीज़ान, असीर, बहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक के जनूबी हिस्से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ की तरफ से आयल और क़सीम के इलाक़ों और रियाज के इलाक़ों के मगरबी हिस्से बारान रहमत पर बरस सकते हैं। उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बारिश से बचने और बज़रिए सड़क सफ़र के दौरान एहतियात का मशवरा दिया है। मदीना मुनव्वरा बस सर्विस मंसूबे की इंतज़ामिया का कहना है कि माह मुक़द्दस के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन ने बसों के ज़रिए सफ़र किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा बस सर्विस मंसूबे की इंतज़ामिया ने कहा है कि यकम रमज़ान मुबारक से बस सर्विस का आगाज़ किया गया। 7 मुख्तलिफ स्टेशन ज़ायरीन की बेहतर खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जो मुख्तलिफ रूट्स से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाते हैं। वाज़ह के मदीना बस सर्विस स्टेडियम, सैयद शोदा, इस्लामी यूनिवर्सिटी, शतिया और हारिसा से बसें मस्जिद नबी ले जाती हैं और वापस लाती हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब में रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ई-गेट्स के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया गया है।
हेरिटेज अथॉरिटी ने सऊदी अरब में 70 नए तारीखी मुकामात का इंदराज किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए मुकामात के इजाफे के बाद सऊदी अरब में कुल 8,917 तारीखी मुकामात का इंदराज हो चुका है। अथॉरिटी ने कहा है कि दर्जशुदा तारीखी मुकामात मुल्क के तारीखी सकाफत और तहजीबी विरसे की अक्कासी करते हैं। अथॉरिटी ने बताया कि नए दर्जशुदा तारीखी मुकामात में से असीर रीजन में 14 मुकामात, जौफ में 13, हायल में 12, जिजान में 11, कसीम में 7 और मदीना मुनव्वरा में 6 मुकामात के अलावा रियाज में 2 मुकामात का इंदराज हुआ है। अथॉरिटी ने कहा है कि मुल्क के तौल अर्ज़ में तारीखी मुकामात के इंदराज का अमल जारी है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल के जरिए पंजाब हुकूमत से बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयनों की दरख्वास्त की है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से मीडिया पर गर्दिश कर रहे खबरों पर तशवीश का इजहार करते हुए पंजाब हुकूमत से रब्ता किया। इस हवाले से वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा सैयद कासिम अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम एक ख़त तहरीर किया है। ख़त में सूबाई वज़ीर सेहत ने बुशरा बीबी को मुबैना तौर पर जहरीली खुराक खिलाए जाने से मुतालिक खबरों पर अपनी तशवीश जाहिर की है। दुबई के वली शेख हमदान बिन मोहम्मद ने आज ऐलान किया कि ईद उल फितर के मौके पर मुतअद्दिद अइम्मा व मुअज़्ज़िज़ीन और मुबल्लिगीन मजहबी मौक़िक़ीन को सुनहरी रिहायशी वीज़ा देने का फ़ैसले का ऐलान किया है। यह फ़ैसला मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की हिदायत पर किया गया। गोल्डन वीज़ा दुबई में 20 साल की सर्विस मुकम्मिल करने वालों को दिया जाएगा। गोल्डन वीज़ों के अलावा वसूल कंदगान को ईद के मौके पर नक़द इनाम दिए जाएंगे, जिस मजहब की तरवीज, अवामी अखलाकियत के तहफ़्फ़ुज़ और रवादारी के इक़दार को फैलाने में मदद करने के लिए इनकी कोशिशों को सराहा जाएगा, जो मुत्तहिदा अरब इमारात की खुसूसियात है।